Good morning, student. The topic that we are going to study today is techniques of scientific management as developed by Taylor. Now, there are total 4 techniques which have been developed under the techniques of scientific management, that is functional foremanship, standardization and simplification of work, work study technique and differential piece rate system. So today we are going to concentrate on the very first 2 techniques of scientific management, that is functional foremanship, and second, that is standardization and simplification of work. So the very first technique as developed under scientific management is functional foremanship. This is one of the most important contribution as given by Taylor. Now first of all, what do you understand by functional foremanship? In the previous chapter, we have already studied that there are 3 levels of management: top level, middle level and the operational level. Now, the operational level workers, the supervisors, they are actually responsible for planning the production process or achieving the targets or controlling of the floor activities. Okay? So, these are the actual people, these are the supervisors who are responsible for proper working of the operational level. तो ये जो foremanship है, they are termed as the operational level managers. Managers की ranking में they come at the last, जबकि workers की ranking में they are at the top. So Taylor ने क्या किया? Taylor decided to concentrate only on this operational level of managers. So he concentrated on improving the performance at the operational level. वो उसने क्या किया कि एक good supervisors में क्या क्या qualities होनी चाहिए? He started identifying the qualities and he realized कि ये सारी की सारी qualities सिर्फ एक ही बंदे में होना possible नहीं है. So what he suggested? He suggested that there should be separation of planning and execution, and this separation of planning and execution lead to development of the technique of functional foremanship, which is nothing but actually an extension of division of labor and specialization. अब ये functional foremanship में टेलर ने क्या किया? He suggested कि टोटल 2 एरियाज हमने देखी, एक है प्लानिंग और एक है एग्जीक्यूशन. तो उसने क्या किया? उसने 2 इंचार्जेस बनाए, एक होगा प्लानिंग इंचार्ज एंड सेकेंड विल बी दी प्रोडक्शन इंचार्ज, विच इज नथिंग बट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एग्जीक्यूशन ऑफ दी प्लानिंग. तो उसने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन उसने अलग कर दिया, दोनों के लिए एक एक इंचार्ज बनाए. अब हर एक इंचार्ज के अंदर उसने 4 अलग अलग लोग आइडेंटिफाई किए. ठीक है, दैट इज प्लानिंग इंचार्ज के अंदर देयर विल बी 4 पर्सनल हु विल बी हैंडलिंग दी प्लानिंग वर्क एंड there will be 4 personnel under the production in charge who will be handling the production work. Now, he identified that जिन लोगों के अंदर टेक्निकल मास्टरी है, इंटेलिजेंस है, they will be giving the planning work. यानी जो भी प्लानिंग करना है, प्रोडक्शन रूट क्या होगा, किस तरह से प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, कितने which people or which type of workers will be required, ठीक है, कितने टाइम में ये पर्टिकुलर काम खत्म होना चाहिए, ये सारा का सारा प्लानिंग का काम कौन करेगा? The planning in charge. Similarly, the people who are good in energy and who are having good health, they will be doing the execution work or they will be handling the production work. तो इस तरह से टेलर ने क्या किया? उसने 2 इंचार्ज बनाए, एक बनाया प्लानिंग इंचार्ज, एक बनाया प्रोडक्शन इंचार्ज, और हर इंचार्ज के अंदर उसने 4 लोगों को काम असाइन कर दिया. और ये सब के सब मिलके क्या काम करेंगे? इन सबका काम होगा कोई भी पर्टिकुलर वर्कर को डायरेक्ट करना या उनसे काम करवाना. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्लानिंग इंचार्ज. अंडर प्लानिंग इंचार्ज देयर आर टोटल 4 अदर इंचार्जेस दैट आर दी टोटल 4 पर्सनल दैट आर दी इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड 4th will be the disciplinarian. Similarly, under production in charge, there are other 4 personnel, that is speed boss, gang boss, repair boss and inspectors. Now, हर एक पर्सनल को उनका जो भी रूल्स और ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, each and every personnel have been assigned their duties and they will be working only on those responsibilities which are being assigned to them. जैसे कि इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, तो इनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वर्कर्स को काम करवाने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस देना है, ये इंस्ट्रक्शंस का ड्राफ्टिंग का काम कौन करेगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. सो द इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर्स. क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वर्कर के लिए कब कब काम करना है, कितने शिफ्ट में काम करना है, कितने टाइम में काम करना है, ये सारी जो भी इंस्ट्रक्शंस का काम होगा
This instruction work will be done by the instruction clerk. The second personnel are the route clerk. ये रूट क्लर्क का काम क्या होगा? टू स्पेसिफाई दी प्रोडक्शन रूट. किस तरह से प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोसीड होगा, ये काम कौन डिसाइड करेगा? रूट. दैट इज द रूट. हाउ द रॉ मटेरियल विल फ्लो फ्रॉम वेरियस मशीन. ये जो रूट स्पेसिफाई करने का काम है, दिस वर्क विल बी डन बाय द रूट क्लर्क. सो ही विल बी डूइंग ओनली दिस प्रोडक्शन रूटिंग वर्क. द थर्ड टाइप ऑफ पर्सनल वाज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. जिसका टाइम क्या, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? फॉर प्रिपेयरिंग द टाइम एंड कॉस्ट शीट. इसका मतलब कोई भी काम कितने टाइम में खत्म होना चाहिए या कितने कॉस्ट में खत्म होना चाहिए, फॉर ईच एंड एवरी वर्कर दिस विल बी डिसाइडेड बाय द टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. एंड द लास्ट पर्सनल अंडर द प्लानिंग इंचार्ज इज डिसिप्लिनेरियन. जिसका मेन काम क्या होगा? टू मेंटेन डिसिप्लिन इन दी फैक्ट्री. तो ये इसके अलावा और कोई भी काम नहीं करेगा. So these are the four personnel who will be working under the planning in charge. Similarly, under the production in charge, they will be also assisted by the four different personnel. जिसमें सबसे पहला काम क्या है? पहला पर्सनल विल बी स्पीड बॉस. इसका काम क्या होगा? अभी कोई भी काम करने के लिए बट ऑब्वियस है स्पीड होनी चाहिए, और कोई भी बंदा स्पीड में काम कर रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपने एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स, एक स्टैंडर्ड सेट करोगे कि इतने स्पीड में इतना काम हो ही जाना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे में आपके 2 पेज तो पूरे से पूरे लिख के हो ही जाना चाहिए. तो आप ये स्पीड के लिए एक डिटरमाइन करते हो, जिसके लिए आपके लिए सामने एक बेंचमार्क रखा होगा. तो ये बेंचमार्क इन वर्कर्स के सामने कौन रखेगा? स्पीड बॉस. तो व्हाट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पीड बॉस? टू कंप्लीट द जॉब एक्यूरेटली एंड टाइमली. ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि ये देखने के लिए कि जो भी जॉब जिनको भी असाइन किया गया है वो ठीक तरह से एंड टाइमली मैनर में उसे कर रहे हैं या नहीं. सेकेंड विल बी द गैंग बॉस. Gang boss will be responsible to keep the machines and tools ready for operation. Production process करने के लिए जो भी machines चाहिए होगी या जो भी tools requires होगी वो on hand worker के पास available हो जाना चाहिए. ये responsibility किसकी रहेगी? This will be the responsibility of the gang boss. Then the third personnel are the repair boss. He or she, they will be responsible for keeping the machines and tools in proper working conditions. मशीन्स के रिलेटेड कोई भी रिपेयरिंग का काम होगा या टूल्स में अगर कोई भी खराबी आ गई है तो उसको सुधारने का काम किसका होगा? रिपेयर बॉस. एंड लास्ट आर दी इंस्पेक्टर्स. दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू चेक एंड मेंटेन दी क्वालिटी ऑफ दी वर्क. ये जो भी काम अब तक किया है, ठीक है, वर्कर्स ने, वो ये देखेंगे कि जो भी काम किया है वो ठीक से किया है या नहीं, और उन्होंने जो भी क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए वो क्वालिटी है या नहीं. एंड अल्टीमेटली वर्कमैन. बीच में वर्कर दिख रहा है आपको, ये वर्कर का काम क्या होगा? टू टेक ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ऑल दी 8 पर्सनल एंड टू डू देयर वर्क प्रॉपरली. सो दिस इज दी फर्स्ट टेक्निक बीन डेवलप्ड बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर. दैट इज 2 इंचार्ज बनाओ, दोनों इंचार्ज के अंदर अलग अलग पर्सनल करो. और ये काम उसको क्यों करना पड़ा? बिकॉज हर क्वालिटी, एक सुपरवाइजर के अंदर जो भी क्वालिटीज होनी चाहिए, क्वालिटीज क्या? जैसे इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, स्पेशल नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, हॉनेस्टी, गुड हेल्थ, ये सारी की सारी क्वालिटी एक ही बंदे में नहीं होगी. इसीलिए ही सजेस्टेड 8 स्पेशलिस्ट एंड ईच स्पेशलिस्ट हैज बीन असाइन्ड द वर्क अकॉर्डिंग टू हिज और हर क्वालिटीज. सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन गिवन बाय टेलर. नाउ द सेकेंड टेक्निक which has been developed by Taylor was standardization and simplification of work. Now, standardization and simplification, these are the two different terms as far as the work is concerned. That is, standardization of work alag hai and simplification of work alag. So first of all, let's concentrate on standardization of work. Now, standardization, as the word itself suggests, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? टू सेट द स्टैंडर्ड फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस एक्टिविटी. कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क रखना पड़ता है, सो दैट आपका काम उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंगली हो रहा है या नहीं, एंड अगर नहीं हो रहा है तो करेक्टिव एक्शंस कैन बी टेकन फ्रॉम योर साइड. सो स्टैंडर्डाइजेशन, दिस टेलर, ही वाज द ग्रेट सपोर्टर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. वी हैव ऑलरेडी सीन in our previous class that he has given one of the scientific principle, that was science and not rule of thumb, जिसके अगेंस्ट में क्या था कि all the business they should analyze different methods of production,
Then on the basis of their past experiences, they will try to find out different practices, refine them, and then उन practices में से एक standard practice adopt करे which will be followed throughout the organization. तो इसके लिए टेलर ने क्या किया? He developed a work study techniques, that is he developed method study, he developed motion study, time study and fatigue study in order to develop a standardized method of work. So what do you understand by standardization? Standardization is nothing but it is setting the standard for each business activity. Each business activity का मतलब क्या है? Which are the standard raw materials that will be used in the production process? What is the standard time in which the work should be completed? What are the standard products that the organization is going to manufacture? What is the standard method that is going to be followed in each and every production process? What will be the standard working condition under which the workers are going to work? What is the standard process that will be followed? तो हर केस में standard उन्होंने specify कर दिया. So standardizations are nothing but they are the benchmark which are to be achieved or to achieve the following objectives. So what can be the objectives? The first is to produce the products. एक फिक्स टाइप का, एक फिक्स साइज का और एक फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना. ठीक है. सिमिलरली द सेकेंड वाज एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ मैन एंड इन टर्म्स ऑफ मशीन्स. देन द थर्ड ऑब्जेक्टिव वाज टू अचीव स्टैंडर्ड क्वालिटी, कि जो भी क्वालिटी स्पेसिफाई किया गया है मटेरियल्स में, वो क्वालिटी में वो स्टैंडर्ड्स को आप अचीव या एस्टैब्लिश कर सको. एंड द फोर्थ वाज टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट्स एंड प्रोडक्ट. इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट मतलब क्या है कि एक पार्ट, जो भी कोई पार्ट है मशीन का, इट कैन बी यूज फॉर सम अदर पर्पस ऑल्सो. सिमिलरली एक प्रोडक्ट इट कैन बी इंटरचेंज विद अदर प्रोडक्ट ऑल्सो. So that is the standardization in terms of product, in terms of quality, in terms of performance and in terms of interchangeability. Now when we talk about simplification, simplification means elimination of diverse product. That means it aims to eliminate different varieties, different sizes, different dimensions, different diversities of product. टेलर क्या चाहता है कि जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करो इट शुड बी सिंपल, अलग अलग साइज के नहीं होने चाहिए या अलग अलग वेराइटीज के नहीं होने चाहिए. कोई भी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करो. इससे क्या फायदा होगा? इट विल लीड टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, कम से कम लेबर की जरूरत पड़ेगी, कम से कम आपको स्टॉक लेवल की जरूरत पड़ेगी. सिमिलरली योर ओवरहेड कॉस्ट विल बी ऑल्सो वेरी लेस. नाउ मोस्ट लार्ज कंपनीज है जैसे कि नोकिया, टोयोटा, Microsoft, they have successfully followed this standardization and simplification technique which is being given by Taylor, and today they are having a good market standing as compared of that of other companies in the world. So these are the two main techniques which are developed by Taylor. Tomorrow we are going to see the third technique, that is work study techniques. Thank you.